Good morning, everyone. It's great to be together again. और गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत अच्छा है यहाँ पर वापस मिलके। All right, if you're happy being here this morning, just tell your neighbor that. अगर आप खुश हैं यहाँ पर आके तो आप अपने बाजू वाले को बोलिए कि आप खुश हैं। Happy to have you, man. All right. Okay, wonderful time of worshiping God. We are called to firstly always worship God. We don't come here to get sorted out. We don't come here to just receive blessing. Our prime responsibility when we come here is saying, God, you are worthy. और जब यहाँ पर हम आते हैं तो आराधना का समय में आते हैं और हम सिर्फ चीजों को ठीक करने से आशीष मांगने के लिए नहीं आते, हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उससे कहते हैं Amen. कि आप योग्य हैं। And when that becomes our focus, और वो जब हमारा ध्यान बन जाता है, and this is the promise of God, तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसका says, वायदा है seek first the kingdom of God, and all these things that you're looking for will be added to you. कि प्रभु के धर्म और उसके राज्य की खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए की जाएंगी। So even this morning when we come to God's word, come with this heart to say, God, I want to seek you and I want to be like you. और जैसे आज आप परमेश्वर के वचन की ओर आ रहे हैं तो परमेश्वर से कहिए, प्रभु आज मैं आया हूं आपके वचन की खोज करने, आपकी खोज करने के लिए। Amen. So can you just pray with someone at your side and just pray that the Holy Spirit will be with us to open our minds, to open our hearts, to understand, and also that we'll be inspired to follow the Lord. और अपने बाजू वाले व्यक्ति के साथ मिलके आप प्रार्थना करें कि वचन जो है वो आप अच्छे से सुने और ये वचन जो आपको प्रेरणा दे। Amen. 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 All right, so we are carrying on with our word on Ezekiel's two visions. The first one was dry bones. और हम जो है उसी वचन को जारी रखेंगे एजेकियल के दर्शन के बारे में जो सूखी हड्डियों के बारे में And था, the और मंदिर, second one was the temple. और दूसरा मंदिर। Okay, we saw first the outer court, हमने पहले बाहरी कमरे को देखा and then we moved into the inner court of the temple. और मंदिर के अंदरूनी हिस्से में भी हम गए। Okay, that's the outer court, I think, there. And then you go in there, and that portion's the inner court there. My hand is shaking too much, yeah. Outer court, you can read it. देख रहे हैं आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, आउटर कोर्ट यानी कि All बाहरी this. कमरा पूरा, And then there is the inner court in there. और Okay. अंदर आप जाएंगे तो अंदरूनी कमरा आता है। Yeah, and we saw last time in the inner court, there was tables. और जैसे हम अंदरूनी कमरे में जाते हैं वहां पर दो मेज रखी होती हैं, And at the table, we saw three things happen. और मेज पर तीन चीजें होती हैं। The first was the inspection of the sacrifice. और सबसे पहला, जो भी जानवर जिसकी बलि चढ़ने वाली Right. है उसको जांचा पड़ताला जाता Is था। the sacrifice that we're offering acceptable according to the law in God's sight? क्या व्यवस्था के अनुसार ये जो बलि दी जा रही है क्या वो सही है? And we उसे देखा saw जाता in था। the New Testament, it refers to the examination of our hearts. और नए करार में इस तरीके से बताते हैं कि ये हमारे दिल के जांचने का मामला है। The second thing we saw was on the table, the sacrifice was slaughtered. और दूसरी बात हम देखते हैं उस मेज पर वो जो बलि है उसको जो उसका वध किया जाता था। All right, and we realized that there is a big cost to our sinfulness that a substitute has to be slaughtered. और हमारे पाप के लिए, उसकी क्षमा के लिए, उसको चुकाने के लिए कोई तो है, उसके बदले में उसकी बलि दी जानी थी। But we also realized that to slaughter means for us also to be willing to die to all our selfishness, sinfulness, and all earthly desires. और जब आप जो है बलिदान की ओर आते थे तो आपको किसी चीज को मारना पड़ता था, जैसे हम को जो है दिल की जो बुराई है, हमारे जो गलत अभिलाषाएं हैं उनको मारना। So the sacrifice was killed, and Jesus says, if anyone would come after me, he must pick up his cross, he must die. और जो बलि के लिए जो जानवर लेकर आते उसको मारना पड़ता था, और प्रभु यीशु ने कहा
जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा लो, मेरे पीछे हो ले। And the third part we saw, after the sacrifice was slaughtered, it was cut into pieces. और जानवर की बलि देने के बाद हम आगे क्या देखते हैं कि उसके शरीर के टुकड़े करके रखे जाते थे। And we saw for the New Testament, it means that we should be, by the way, Devya, there is a PowerPoint. We saw there is we offer our lives piece by piece, our family, our future, our finances, we offer it to God. और हमारा परिवार, हमारा काम, हमारा सब कुछ जो है परमेश्वर के हवाले हम कर दे टुकड़ों में। Okay, I just want you to, before we move on now, I want you to share these three things with your neighbor. और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं अपने बाजू वाले व्यक्ति के साथ में बांटें। It's important for us to remember, as part of our complete worship, there must be inspection, there must be death or slaughter, and there must be piece by piece. All right? तीन On the बातों को table. होना बहुत जरूरी। सबसे पहला आपको जांच करना है कि आपकी जो बलि है जो आप लेकर आए हो वो सही है कि नहीं। दूसरा जो है आपको जो है उसको जो है वध करना है, आपको उस बलि को अर्पण करना है। और तीसरा उसके जो टुकड़े हैं वो मेज पर रखने हैं। ये तीन बातें हैं। Is that okay? क्या ये ठीक है? You're looking as though this sounds like Greek. आप ऐसा मुंह बना रहे जैसे क्या पहली बार सुन रहे हैं, पर ये Okay, यूनानी listen. है। We have to understand these are deep spiritual things, but very simple. So we must know that God wants us on the table. Okay? और ये काफी जो है ये गहरी आत्मिक बातें हैं, पर ये काफी सरल है। Okay, so one, inspection, that means examining yourself. Two is death. And three, piece by piece. और सबसे पहला आपको जांच करना है कि आपने जो जानवर बलि के लिए लेकर आए क्या वो सही है। दूसरा उसकी बलि देनी है। और तीसरा मेज पर उसके जो उसके टुकड़े हैं उसको रखना है। Come on, share it with one another. You will know whether the other one is understood. आप बाजू वाले से बांटिए तो इससे मालूम पड़ेगा आपको समझ में आया या बाजू वाले को समझ में आया। All right. All right. Listen. This is, all right, we saw the outer court was the place of blessing, the favor of God, breakthrough, finances. That is the outer court. और बाहरी कमरे में हम क्या देखते हैं कि बाहरी कमरे में आपको तमाम आशीषें, तमाम आपके जो बेदारी, तमाम आपके जो चमत्कार यहाँ पर हो जाएंगे। But that's not complete worship. We move into the inner court where the table is. इसमें पूरी आराधना नहीं है, बल्कि आपको और अंदर जाना है, अंदरूनी कमरे में जहां पर पूरी आराधना होती है। And just when we think, okay, this is about it, I've confessed my sin and everything. This is heavy stuff. अगर आप ये सोचते हैं ये तो काफी भारी वचन जैसा है क्योंकि मैंने पाप का अंगीकार कर लिया। And we may think we've done our bit. और हमने अपना जो थोड़ा करना था वो कर लिया। But the sacrifice was not to remain on the table. और जो बलि है, जो कुर्बानी है, उसको सिर्फ मेज तक ही नहीं रखना है। Now it had to go here. This is where the altar was. और यहाँ पर वेदी है, यहीं पर उसको लेकर जाना है। Okay, that's where the altar is. The sacrifice had to move from the table, all right, to the altar. और जो बलि, जो कुर्बानी जो आपने दी है उस जानवर की, तो उसको लेके आपको मेज पे से निकाल के अभी आपको वेदी पे लेके जाना है। So our worship has another step. और हमारी आराधना का एक अलग स्तर है, the altar. वेदी। At the table we only prepare the sacrifice and examine. और उस मेज पर जो है बलि दी जाती थी और उसे जांचा जाता था। At the altar the sacrifice is now offered to God. और उस वेदी पर जो बलि आपने जो दी है उसे परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। Here is where we can make a mistake as followers of Christ.
और मसीह के पीछे चलने वाले होने के नाते हम यहाँ पर गलती कर सकते हैं। We can stop at the table and say, I've confessed my sin. हम मेज पर ही रुक सकते हैं, हाँ मैंने मेरे पाप की कबूली कर ली, बस हो गया। We've examined ourselves, we've admitted our sin and confessed it. हमने अपने दिल की जांच परख कर ली, हमने अपने पाप की कबूली कर ली। We think our repentance and our worship is done. हमारा पश्चाताप, हमारा ये माफी मांगना सब हो गया। But we've got to go beyond that, हमें उसके आगे जाना है, because we've still not offered ourselves to God. क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर को चढ़ाया नहीं है। The Ezekiel vision of the temple continues to show us what worship is about. और एजिकल का दर्शन परमेश्वर के मंदिर को लेकर के बहुत गहरा है। It invites us deeper into worship, वो हमें आमंत्रित करता है और गहरी वाली आराधना में, fulfilling what Jesus said in John 4:23. और यूहन्ना 4:23 में जो प्रभु यीशु ने कहा उसको पूरा करता है। The Father seeks worshipers. पिता आराधना करने वालों को ढूंढता है। Amen. All right, tell your neighbor, the Father is looking for men and women who truly worship God. और अपने बगल वाले व्यक्ति से कहिए कि प्रभु जो है दिल से आराधना करने वालों को वो ढूंढता है। Amen. All right, you said that. So challenge one another to be true worshipers. अगर आपने एक दूसरे से बांट लिया है तो एक दूसरे को चुनौती भी दो कि आप जो है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बने। So we are going now further into the inner court. अभी हम थोड़ा और अंदर जो है उस अंदरूनी कमरे की ओर जाएंगे, Beyond the table, और उस मेज के आगे, beyond confession, और पाप की कबूली के पहले, beyond confessing all the pieces of our lives. हमारे जीवन के टुकड़ों की कबूली करने के भी आगे, And we are moving now to consecration. फिर आगे जो है अलग किए जाना, वहां पर हम जाने वाले हैं। This is what happens at the altar. देखिए यहाँ पर जो है वेदी पर ये होता है, And what we are looking at today. और जिसको आज हम देखने वाले हैं। All right. I'm not going to read it because it'll take a bit of time. मैं इसे पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ये समय ले लेगा। Okay. In Ezekiel 43 verse 13 to 17, I'm not reading it, but it gives you all the description of the altar. और जब जैसे आप देखेंगे कि इज़ीकियल की किताब 43 का 13, तो इसके अंदर पूरा जो है आपको बताया जाता है। All right. I think we have gone beyond this if I'm not mistaken. Okay, sorry. Yeah, keep it there. Okay, here I want to show you what we saw earlier in the picture. The altar stood centrally in the inner court. और जो वेदी है एकदम बीचों बीच रहती थी उस अंदरूनी कमरे के। It had steps leading up to it. और वापस पायदान, उसकी जो सीढ़ियां होती थी वहां तक जाने के लिए। And on the altar were 4 horns. और वहां पर जो है 4 सींगे होते थे। Around this altar, I'm just giving you the description in today's measurements. और आज के जमाने के हिसाब से आपको नाप बताते हैं। Around the entire altar was a gutter. और आज के समय पूरे गटर के जैसे वो होता था, of 21 inches. 21 इंच का। And then from the ground to the lower ledge of the altar was 3.5 feet. और 3.5 फीट की उसकी जो है नीचे से लेकर के ऊपर की ऊंचाई Okay, होती so थी। somewhere up to here, 3.5 feet, I guess. All right. 3.5 फीट यानी कि यहाँ पर। Then from the lower ledge to the upper ledge was another 7 feet. और उसके 3.5 फीट के ऊपर से जो है एक और एक हिस्सा निकलता था और भी And बड़ा। from the upper ledge to the place where the sacrifice was kept to be burnt, that was another 7 feet. और जहां वहां से लेकर के ऊपर तक जहां पर उस बलिदान को और दिया जाता था वो अलग से 7 फुट और। So where they kept the animal pieces to be burned, it was 21 feet by 21 feet. That's big, isn't it? और 21 बाई 21 फीट का उसकी जो है ऊंचाई चौड़ाई हुआ करती थी उस समय में, जब जानवरों की जो बलि देती थी वहां पर दी जाती The थी। upper ledge was almost 25 by 25 feet. और उसका ऊपरी हिस्सा जो है 25 बाई 25 का
जो है Alright? इतने So इसका होता that's था। just to give you a description of that altar. और ये सिर्फ मैंने बताने के लिए आपको बताया था कि किस तरीके से वो वेदी दिखती But है। this morning we're going to look at 3 key things about the altar regarding our worship. और 3 मुख्य बात आज मैं आपसे बताने वाला हूं हमारी आराधना को लेके उस वेदी के ऊपर। Okay, you're still with me? बने हमारे साथ में। Number 1, सबसे पहला, the sacrifice was arranged piece by piece. और जो बलि था उसे जो है टुकड़े टुकड़े करके जो Okay. है लगाया जाता So था। the sacrifice, number 1, was offered to God. That was being consecrated to God. That's number 1. और सबसे पहला कि उस बलि को जो है परमेश्वर के हवाले किया जाता, परमेश्वर को समर्पित किया जाता था। Number 2, on the altar, और दूसरी बात वेदी पे, the blood that was shed after slaughtering the animal was applied to the altar. और जो जानवर की बलि दी जाती थी तो उसका जो खून है वो उस वेदी को लगाया जाता था। And it shows 2 things. ये 2 बातें बताती हैं। Number 1, our sin is atoned for, so we now have access to the presence of God. सबसे पहला हमारा पाप जो है वो अभी ढक चुका है, तो अब हमारे पास जो है परमेश्वर के पास जा सकते हैं। And number 2, the power of God is in the blood to overcome sin. और परमेश्वर का जो ताकत है, उसकी सामर्थ उस खून में है ताकि हम उसके पास आ सकें। All right, number 3, तीसरी बात, the fire of God comes down and consumes the offering. और परमेश्वर की आग, उसकी अग्नि उतरती थी और जो बलि था उसको जो है वो ले लेती थी। And it shows God's pleasure at the sacrifice. और यहाँ पर दिखा था परमेश्वर की उस आनंद को। Okay, so we're going to do number 1, consecration. सबसे पहला जो समर्पण है हम उसको Right? देखेंगे, The arrangement और of उसको the किस तरीके pieces, से व्यवस्थित किया जाता था, offering to God. परमेश्वर को जो है दिया जाता था। Leviticus chapter 1 verse 8 says, और लेव व्यवस्था 1:8 कहता है, the priests shall lay the parts, the head and the fat in order on the wood that is on the fire upon the altar. और यहाँ पर लिखा है कि जो याजक है वो भाग के अनुसार सर और फिर उसके बाद उत्तम चर्बी उसी के व्यवस्था में उसे रखता था लकड़ी के ऊपर, ताकि जो आग है उसको वो ले ले। Okay, so the sacrifice from the table was not brought and just randomly thrown on the altar. और सिर्फ जो बलि किए हुए जानवर को लेकर आके सीधे ऐसे वेदी पे फेंक नहीं दिया जाता It था। was intentionally now offered to God. और उसे जो है सामने जानबूझकर परमेश्वर के सामने उसको दिया जाता था। Every piece had a place हर एक टुकड़े का एक जगह था and it was put in place, और उसको जगह में रखा जाता था, waiting for the fire of God now to come and consume the sacrifice. और परमेश्वर की आग, उसकी अग्नि का इंतजार किया जाता था कि वो उतर के उस बलि को ग्रहण करे। Now I know this can sound a bit boring, और मुझे लगता है कि ये काफी जो है बोरियत आपको दे सकता but it है, is important to know. पर ये बेहद जरूरी है कि आप जाने। And what does it mean for us today in the New Testament? और ये आज के लिए हमारे लिए क्या मायने रखता है, आज के लिए, आज के नए करार In की the New कलीसिया में। Testament, here's what it means. और नए करार की कलीसिया इसका मतलब ये है, It's got the same language. उसकी भाषा एक है। Paul writes in Romans 12:1, पौलुस लिखता है रोमियो 12:1 में, therefore I urge you, brothers and sisters, और इसलिए मैं तुमसे दरख्वास्त करता मेरे भाइयों और बहनों, in view of God's mercy, कि परमेश्वर की दया में offer your bodies as living sacrifices. कि तुम अपने शरीरों को जीवित बलिदान के तौर पर समर्पित करो, Holy and pleasing to God. पवित्र और प्रभु को भाता हुआ। This is your true and proper worship. और यही तुम्हारी सच्ची सत्य वाली जो आराधना है। All right, now that's a different version. It says reasonable service. No, it's the true and proper worship. और वे कहते हैं ये यही जो है तुम्हारी वाकई में सच्ची आराधना है। Amen. So in the Old Testament, the pieces of the animal were laid on the altar and offered to God. और पुराने करार में जो बलि किया हुआ जानवर था
उसके हिस्सों को लगाया जाता था और फिर परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। In the New Testament, Paul is asking us similarly, please put your lives on the altar. और यहाँ पर पौलुस वैसे ही कह रहा है कि अपने जीवनों को उस वेदी पर चढ़ाओ। Amen. Offer God your life, not physically dying, but a living sacrifice. और यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि अपने शरीरों को सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मरा हुआ शरीर, बल्कि एक जीवित बलिदान के तौर पे अपने शरीरों को चढ़ाओ। So in the New Testament, what is God looking for? और नए करार में परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? He's looking that every person who follows Christ, और वो ये देख रहा है कि हर एक व्यक्ति जो मसीह के पीछे चल रहा है, this is his or her true worship, ये उसकी सच्ची आराधना है। to bring your life and say, God, it's yours. कि अपना जीवन परमेश्वर के सामने लेकर आए और उससे कहे, प्रभु ये आपका है। Right? And what you're offering is how you're going to live. और जो आप चढ़ा रहे हैं, जो आप समर्पित कर रहे हैं, आप कैसे जिएंगे? Piece by piece. टुकड़े टुकड़े करके। Amen. So let's open this up. What and how is this offering done? और देखिए, हम आज देखेंगे कि कैसे और किस तरीके से इस बलि को दिया जाता था। All right, we are consecrating ourselves, we are offering ourselves as living sacrifice. What does it really mean today? और हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर के सामने समर्पित कर रहे हैं। आज के समय में कैसे होता है? And I'm going to read a number of scriptures. और कुछ वचनों को भी मैं बताऊंगा। Firstly, I'm going to tell you the meaning of it. सबसे पहले आपको मतलब बता दूं उसका। 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is what? हिंदी में क्या? अगर कोई यीशु में है तो अब कौन है? नई सृष्टि. Okay, so you are a new creation. The old has passed, the new has come. आप मसीह में कौन है? परमेश्वर की नई सृष्टि, क्योंकि पुराना जा चुका और नई आ चुका है। If you believed in Christ, there is a truth about you. You're a new creation. अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं तो ये एक सत्य बात है आपके लिए, क्योंकि आप क्या है मसीह के अंदर? आप एक नई सृष्टि है। How many of you are new creations? Put your hand up. कितने लोग नई सृष्टि है? Fantastic. But sometimes we are new creation, but we like to live like the old creation. और हम भले से नई सृष्टि हो जाते हैं, पर हमें जीना जो है पुरानी सृष्टि के जैसा ही है। We only want the blessing of the new creation. और हमें जो है नई सृष्टि के आशीष चाहिए। Lord, please, my finances, my promotion, my healing, my this, my that. Secretly, let me carry on sinning as old creation. और हम बोलते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे जो है प्रमोशन चाहिए, मुझे पैसे में आशीष चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, ये चाहिए, चमत्कार चाहिए, पर हम जी रहे हैं उस पुराने वाले इंसान के पाप में ही। So what are you offering on the altar? आप वेदी पे क्या चढ़ा रहे हैं? Here's it. Don't just say, yes, I'm a new creation. Start being a new creation. और सिर्फ हाथ उठाकर ये ना मत बोलिए कि मैं नई सृष्टि हूं, एक नई सृष्टि वाले के जैसे जियो भी। Amen. Yes. Hebrews 10:14. इब्रानियों 10:14। Listen to this. सुनो उसको। For by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. और इब्रानियों 10:14 में ये लगे, क्योंकि एक बलि के वजह से उसने वो सिद्ध कर दिया है। Are you listening clearly? क्या उसको आप सुन पा रहे हैं? He has made perfect. उसने जो है सिद्ध कर दिया है। Now God is saying, it's a strange thing because God is saying he has made holy. और यहाँ पर एक एकदम अजीब वचन है जहां पर ये कह रहा है, मैंने तुम्हें पवित्र कर दिया There है। are two truths about you. और यहाँ पर आपके बारे में दो बातें हैं। He has made you perfectly holy उसने आपको सिद्ध तौर में पवित्र किया है, while you are being made holy. जब आप पवित्र किए जा रहे हैं। So I want us to understand, in position, God has made us holy so we can always approach him. कि देखिए, आप इस बात को गौर से समझिए
कि स्थानिक तौर पे परमेश्वर ने आपको जो है पवित्र कर दिया है ताकि आप उसके पास जा सकते हैं। But now we have to be made holy. और दूसरा कि हमें पवित्र किए जाना है। No one wants to say amen. कोई आमीन नहीं कहना चाहता। All right. So when we are offering ourselves, we are saying, God, I'm offering to be different from people in the world. और जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं, प्रभु मैं संसार के लोगों से अलग होना चाहता हूं। All right, that's the meaning of holy. ये मतलब होता है पवित्र होने I का। don't want you having some, we've got to go in some mountain to meditate and that's holy. No. Holy means being separate from others who are sinful. और ये मैंने आपको नहीं बता रहा हूं कि आप पवित्र हो तो आपको पहाड़ों में जाना है, घोर तपस्या में बैठना है, नहीं। If people in the world don't want to forgive, no, you be holy. You forgive. बाहर के लोग जो है अविश्वास के जो लोग हैं वो माफ नहीं करना चाहते, आप माफ करो, आप पवित्र हो। Somebody say amen. No one wants to say amen. Number 3. तीसरा, we saw Romans 12:1. Offer your bodies as living sacrifices. This is true worship. और रोमियो 12:1 जिस तरीके से कहते हैं अपने शरीरों को जीवित बलिदान के तौर पे प्रभु को चढ़ाओ। Verse 2 says, do not conform to the pattern of this world, be transformed by the renewing of your mind. और उसका दूसरा वचन ये कहता है कि संसार के जो है सदृश्य मत हो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा दिल परिवर्तन हो जाए। So when you're offering yourself, पर जब आप अपने आप को जो है परमेश्वर के हवाले कर रहे हैं, you're offering and say, God, I want to be transformed. तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर रहे हैं कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ। Romans 8:29. रोमियो 8:29। For those God foreknew, he predestined to be conformed to the image of his son. क्योंकि प्रभु ने जिन लोगों को बुलाया उसके पुत्र के स्वरूप में ढलने के लिए। Who is that? वो कौन है? Who is that? कौन है वो? Image of the son. Who is the son? और All right, that means you and I have been chosen to become like Jesus. इसका मतलब ये है कि हमें किसके जो है स्वरूप में ढलने के लिए बुलाया, किसके स्वरूप में बुलाया है? यीशु के। तो आप और मुझको बुलाया गया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढलने के लिए प्रभु ने here's the बुलाया। meaning. Here's the meaning. यहाँ पर उसका मतलब है, You're offering yourself at the altar to make yourself new. आप अपने आप को वेदी पे चढ़ाते हो नए होने के लिए, Being holy, पवित्र होने के लिए, being transformed, परिवर्तन होने के लिए, and becoming like Jesus. और यीशु की तरह बनने के लिए। This is true worship. ये सच्ची आराधना है। Amen. And that's why Paul says, now this is coming to the altar being a living sacrifice. और पौलुस कह रहा है कि ये बातें वेदी पे आ रही हैं, आप एक जीवित बलिदान है। Being men and women who will be changed. और ऐसे स्त्री और पुरुष जो बदलेंगे। I'm sounding so very excited about this. अब इसके बारे में जो एकदम उत्साहित नहीं सुनाई दे रहे मुझे। We don't want to be like Jesus. We just want his blessings. हमें यीशु की तरह नहीं होना है, सिर्फ उसके आशीष चाहिए हम लोग को। Well, this is worship. ये आराधना है। So what it's talking about वो किस बारे में बात कर रहा है? is when you offer yourself, you are offering to be an overcomer in life. जब आप अपने आप को चढ़ाते हैं परमेश्वर के सामने तो आप जो है जीतने वाले बंदे बन जाते हैं। Amen. In our membership course, a foundation course, we teach this. हमारे मेंबरशिप कोर्स, हमारे फाउंडेशन कोर्स में बुनियाद के बातों में हम ये सिखाते हैं। Firstly, have faith in Jesus. सबसे पहला विश्वास प्रभु यीशु मसीह में। You got grace and all the blessings in the outer court. और आपके पास अनुग्रह बहुत सारी आशीषें जो है वो बाहरी कमरे में है। Then we teach about confession. That's the table. और हम सिखाते हैं कबूली के बारे में, जहां पर वो हम अपने पाप को कबूलते हैं उस वेदी पर। That means we acknowledge we're sinners, we confess specific sin, we admit it, and even make a decision we'd like to change. और हम जो अपने पाप का कबूलनामा करते हैं, हम अपने पाप की कबूली करते हैं और हम एक जो है निर्णय बनाते हैं परिवर्तन का। But something till now has not yet happened in worship. पर अभी तक कुछ नहीं हुआ आराधना में। And that is living
a victorious, overcoming life. कि एक विजेता वाला जयवंत जीवन हम नहीं जीते। This is becoming new. ये बदलता है। This is becoming like Jesus. और ये होता है मसीह की तरह जीना। Amen. Amen. All right, Paul writes in Romans 6:12. और पौलुस लिखता है रोमियो 6:12 में, Don't let sin reign in your mortal body. Don't let it reign. कि पाप को जो है तुम्हारे शरीरों में जीतने मत दो। How many of you say, I'm like that only? No, I get angry all the time. और कितने लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे मैं तो ऐसा ही हूं ना, मुझे तो गुस्सा आता है, तुम्हें तो पता ही होगा। When those people hurt me, what else can I do? I have to get angry and bitter with them, no? अरे तुम्हें तो पता है ना, इन लोग मेरे साथ ऐसा बात करेंगे तो मुझे भी तो वैसा उनसे बात करने को तुम्हें तो पता ही है ना। No, नहीं, you're a new creation. आप एक नई सृष्टि है। Offer yourself, अपने आप को परमेश्वर के and सामने God चढ़ाओ, will give you grace. और फिर परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे। Amen. You can love even though you're hurt. आप प्यार कर सकते हैं जब आपको जो है चोट भी पहुंच रही हो तब भी। This morning, the prophetic word said there are waves coming. Just come to me, enjoy the love of Jesus. और किसी ने जो भविष्यवाणी का वचन लेकर है कि परमेश्वर के प्यार की लहर आ रही है और आप उसमें आनंद बना रहे हैं। Here's how we overcome hurt. देखो इस तरीके से हम चोट को हराते We हैं। come to the God who's died for us. हम एक ऐसे परमेश्वर के सामने आते हैं जो हमारे लिए मरा। And I want to say to all of us, और मैं सभी से कहना चाहूंगा, this is the good news. ये जो है सुसमाचार है। All of us have been broken people हम सारे लोग टूटे हुए लोग हैं because of our own sin हमारे खुद के पाप की वजह से, and because of what others have done to us. We're broken. और जो दूसरों ने हमारे साथ किया उसके वजह से हम टूटे हुए हैं। But in Jesus Christ, पर प्रभु यीशु मसीह में He can make all of us whole. हम प्रभु यीशु मसीह हम सबको जो पूरा एक बनाते हैं। And not just that, सिर्फ वही नहीं, He will help us to change and be a hope to other people. बल्कि हम जो टूटे हुए लोग हैं वो पूरा बनाते हैं और जो टूटे हुए लोग हैं उनके पास हमें बेचते हैं। Amen. When you come to the altar, और जब आप वेदी की ओर आएंगे, you're offering yourself to have a life that overcomes. आप एक ऐसे जीवन की ओर आते हैं जो विजय होता है। Amen. And Paul writes, we are more than conquerors through Him who loved us. और पौलुस लिखता है कि उसकी बदौलत हम विजेता से भी बढ़कर हैं। Amen. Amen. Come on. This is one of the greatest, one of the biggest truths about who you are. और ये जो है बहुत बड़ा सा जो खुलासा है आपके बारे में, बहुत बड़ा सा जो सच्चाई है आपके बारे में। Paul writes, I'm knocked down. I've been shipwrecked. I've been beaten with lashes 3 times. I'm this, I'm that, I'm that. But और पौलुस कहता है मुझे मारा गया, मुझे सताया गया, मेरा जहाज टूटा, मैं डूबा, मुझे गिराया गया, मुझे अपने घुटनों पे लेकर आया, लेकिन I'm knocked down. मैं जो है गिरा भी हूं, But पर not knocked out. पर मैं जो है वहां पर गिरा पड़ा हुआ नहीं हूं। That's an overcoming life. Do you want it? और ये जो है जीतने वाला जीवन है, ये आपको चाहिए? Or you only want to say, poor, you want someone to come all the time and say, you poor little fellow. But we do need that. But I want to lead you to God who shows you will overcome. और हमको जो है विजेता वाला जीवन जीना है। हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए जहां पर हमको चाहिए ऐसा कि अरे कोई आए आपके पेट पे तब अरे आपके साथ ऐसा होगा, ये नहीं, बल्कि आपको विजेता वाला जीवन चाहिए। Don't let bitterness reign over you. Don't let unforgiveness reign over you. Don't let revenge reign over you. You reign over it. और आप जो है कड़वाहट को अपने पर हावी ना होने दे। आप अपने अंदर जो है माफी नहीं देके इस बात को हावी ना होने दे, किसी को माफ नहीं करना, इस बात को जो है आप अपने ऊपर हावी ना होने दे। Amen. Verse 13, chapter 6, Romans says, do not present your members or pieces as instruments of unrighteousness to sin. और 6:13 को ये लिखता है कि इसलिए तुम जो है अपने जो सदस्यों को और ऐसे वस्तुओं को जो अधर्मी है उसे पाप के लिए वो दे दो। But present yourselves to God as being alive from the dead. पर तुम अपने आप को इस तरीके से दो ताकि वो तुम मृत्यु में से जी उठे हो। Are you holy?
क्या आप पवित्र हैं? Yes. हाँ, Everyone should say yes. सब लोग हाँ बोलें। If you've believed in Christ. अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं, Yes. हाँ, Be clear about it. इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट हो जाओ। But now, और अब be made holy also. पवित्र बने भी रहो। That's at the altar. ये वेदी पे है। Amen. All right. So firstly, at the altar, you become new. What's happening at the altar? You're becoming holy, you're becoming new, you're becoming like Jesus. That's a possibility. और वेदी पे हो रहा क्या है? आप नए बन रहे हो, आप पवित्र हो रहे हो और प्रभु के यीशु के जैसे बन रहे हो। Now, how do we actually do it? इसको अभी करे कैसे? Now, here's where intentionally every morning in your prayer time, Jesus taught us how to pray every day. That's worship. और जब हम आते हैं अपने मन से, हम आते हैं, खुद से हम आते हैं और उस प्रार्थना को करते हैं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। And there is a prayer, Lord, forgive me my sin. There is a time of reflection of the previous day. और वहां पर जो है एक परछाई होती है कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे अपराधों से मुझे माफ कर। You begin to think in your prayer time, Lord, how did my day go? Let me examine it before you. और आप जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो पूरे दिन के अंदर जो आपका दिन गया, पूरा दिन गुजरा, आपने क्या क्या किया, आप अपने आप की जांच पड़ताल कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। I got up in the morning. सुबह को उठा। I expected my wife to lay out the breakfast. और मैंने ये सोचा था मेरी पत्नी आएगी और अच्छा जो है नाश्ता लगाएगी। If you're having a genuine talk with God, He'll say, "Stop. Let's examine that." अगर आप जो परमेश्वर के सच्ची में बात करें, परमेश्वर रुको और जांच करो। If your life is really one of offering, you would stop. अगर आप जो है आप चाहते हैं कि आपका दिल वैसा बने तो आपको कई बार रुकना भी है। If your life is not one of offering, your conscience has gone so hard you cannot even see your sin. अगर आप जो इस बात को एकदम जो चूक जाते हैं और आपका दिल कठोर हो जाता है और ऐसा होता है कि आप कभी-कभी अपने सामने अपने पाप किया भी है पर भी आप देख नहीं पाते हैं। All right, or maybe you're coming back from work at the end of the day and you just sit down on the sofa, wife, bring me the chai. Come on, I want the tea. Stop. और आप आते हैं सीधे सोफे पे बैठ जाते, टांग पे टांग रख के, और फिर आप अपनी बीवी को कहेंगे कि मुझे चाय चाहिए। All right, you went to office. आप ऑफिस गए। You went late maybe. हो सकता है आप लेट गए। All right, and you say, God, why did I do that? God, why did I do that? और आप परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मैंने क्यों किया? You begin to examine yourself in the presence of God. आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने आप को देख रहे हो। Because you want to be like Jesus. क्योंकि आपको प्रभु यीशु के जैसा होना है। Yes or no? आया ना? All right. Now maybe you've gone to office on time, but Sunday you faithfully very late. और आप जो है भले से संडे को आप ऑफिस गए समय पर, जो आप रविवार के दिन लेट हो गए। Maybe the church is not paying you to be on time, so you don't mind it. क्योंकि कलीसिया आपको समय पर आने के पैसे नहीं देती, तो इसलिए आप उसको हल्के में लेते हैं। So you stop and say, God, is my life honoring you? और फिर हम रुकते हैं, परमेश्वर से कहते हैं क्या मेरा जीवन तुमको आदर देता है? All right, you've run through. Did you spend time with your kids? And you say, Lord, I didn't spend time with my kids. Stop. Let me examine that. I'm a new creation. I need to spend time with my kids. क्या तुमने अपने बच्चों के साथ समय बिताया? फिर आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, रुको और जांचो कि क्या तुमने वाकई में समय बिताया अपने बच्चों के साथ में? Why did I abuse my children yesterday, Lord? Why? और कल मैंने अपने बच्चों को एक गाली गलौज क्यों किया प्रभु? All right. These are questions, very simple, but this is coming to the altar. काफी सरल से ये सवाल है, पर यही है जब आप वेदी की ओर आते हैं। As a son or as a daughter, why do I not listen to my parents? What's going on in my heart? और एक बेटा होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, क्यों मैंने अपने माँ बाप की बात को नहीं सुना? Here's the altar. You get what I'm saying? ये वेदी है। I want to encourage us. मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा। Can we come to the altar? क्या हम वेदी की ओर आए? Because when we do this consistently, जब हम इन बातों को लगातार करते हैं, we get transformed over time. हम समय दर समय बदलते जाते हैं। Our attitudes begin to change. हमारा रवैया जो है वो बदलता है। Amen. What attitudes?
कौन से The रवैये? first response is love. सबसे पहले प्रतिक्रिया वो है प्यार का, First response is forgiveness. और हमारा पहली प्रतिक्रिया हो जाती है हम माफी करते हैं. Even if you're angry, you'll be upset with yourself. God, I cannot remain angry. और जब आप गुस्से रहते, किसी से दुख रहते, आप अंदर ही अंदर संघर्ष करें, There's प्रभु a- मैं गुस्सा नहीं रह सकता. You are a new creation. You will find victory. और आप एक नई सृष्टि हो, आप जो है विजय को ढूंढ लेंगे. And when those new attitudes form over time, जब आपके अंदर ऐसे नए रवैये जो है जन्म लेते हैं, your behavior changes. आपका जो बर्ताव है वो बदलता है. You become like Jesus. आप यीशु की तरह हो जाते हैं. Amen? Yes or no? आया ना? You become like Jesus. हम यीशु की तरह बन जाते हैं. You develop good habits. आपके अंदर अच्छी आदतें आ जाती हैं. And what the Bible calls the fruit of the Holy Spirit. और बाइबल इसे जो है आत्मा के फल कहता है. Love, joy, peace, patience, self-control, all these good things. और जो है प्यार करना, संयम रखना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, ये सारी Amen. चीजें जो है ये बताती है Are you बाइबल. still with me? क्या आप हैं हमारे साथ में? Okay. Paul changed from being a violent man religiously to one who now preached the gospel. He changed at the altar. और एक गुस्सैल, अहंकारी और इस तरीके से आक्रमण करने वाला इंसान जो पौलुस था, अब वो बदल के जो है प्रभु का सुसमाचार प्रचारक बन गया. Zacchaeus changed from a man who was a tax collector. He was corrupt, he was greedy, he was extorting people. और जो हम देखते हैं जक्कई जो भ्रष्ट था, वो लोगों से पैसे ऐंठता था और जो है चुंगी लेता था, गलत काम करता था, वो बदल गया. And when he met Jesus, he gave half his possessions to the poor and returned 4 times as much things he had taken from other people. और बाइबल कहती है जब उसने प्रभु यीशु से मुलाकात की, उसने अपनी आधी दौलत गरीबों में बांट दी, और जिन लोगों से उसने बेईमानी से हासिल किया था उन सभी को 4 गुना लौटा दिया. Okay, so consecration is समर्पण ये है becoming new and becoming like Jesus, being transformed. नए बनना और प्रभु की तरह बनना. All right? And overcoming life. और एक ऐसा जीवन जो जीतता है. Offering it, developing a daily pattern of offering this to God, piece by piece. और इस शैली को अपनाना कि आप अपने आप को लगातार परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं. But I want to say here there's a protection. और यहाँ पर आपकी एक सुरक्षा है. We are not called to just examine ourselves. Where am I wrong? Where am I wrong? Where am I wrong? No, God doesn't want that. और से हमको सिर्फ खुद की जांच करने को नहीं बोले, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत There हूँ. are 2 things we hold together. हम 2 बातें पकड़ कर चलते हैं. He has made us perfect, holy. उसने हमें पवित्र बनाया है. So we stand in this position. I am holy. I am loved by God. God will accept me. That's a very firm position. और इस पायदान पर आते हैं और आप जो है आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आप ये कहते हैं मुझे उसने पवित्र किया है, मैं उसके पवित्र स्थान में हूँ. All right, that's our protection. That's ये our हमारी protection. सुरक्षा है. Now that we are strong here, और क्योंकि अब यहाँ पर हम मजबूत हैं, we're able to listen to the voice of the Holy Spirit showing us areas we need to change without feeling guilty or condemned. और फिर उसके बाद हम एक नई जगह पर आते हैं जहां पर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं, जहां पर वो हमें बताता है कि कौन सी ऐसी जगह है हमारे जीवन में जिसको हमें सही करना है बिना हमें दोषी महसूस कराए. That's a happy place to be, isn't it? God has put us in a safe place. परमेश्वर ने कितनी अच्छी जगह पे हमको रखा है. Amen. Number 2. दूसरी बात, So the first one is consecration, offering ourselves to at the altar. The second one is the blood is applied at the altar. और जिस तरीके से हमें बताया गया है कि हम जो है सबसे पहले परमेश्वर को समर्पित करते हैं, Yeah, carry और on. We दूसरा finish this. We finish this. Yeah. और दूसरा जो है Okay. उस लहू को, उस खून को उस वेदी पे लगाना. Okay, so before the fire comes and consumes the offering, और जब अग्नि ऊपर से उतर के उस बलिदान को जो है ग्रहण करती है, the animal who is sacrificed, the blood is collected.
और जिस जानवर का बलि चढ़ाया गया है उसके खून को रखा जाता था। And Leviticus chapter 1 verse 5, लेवितियुस 1:5 it says, the priests shall sprinkle the blood all around the altar. और जो याजक था उस खून को जो है वेदी के आसपास में छिड़कता था। Are you still listening? All right. So when the blood was sprinkled, it had to be sprinkled because it is the blood that atones for your sin. और उस खून को इसलिए छिड़कना पड़ता था क्योंकि वो उस जानवर का खून था जिस खून की वजह से तुम्हारे पाप है वो ढक चुके हैं। It's the blood that brings you forgiveness. और ये खून की वजह से तुम्हें माफी मिलती थी। All right. So the blood atones. और जो खून है वो ढाकता था। And the altar reminds us और जो वेदी है हमें याद दिलाती है that our sacrifice is accepted only because of the blood of Jesus. क्योंकि हमारा जो बलिदान है वो तभी ग्रहण होता था जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान द्वारा। Now this might sound very gory. Gory और means ये हो horrible. सकता है कि Horrible. जो है एक पुकार या घिनौना भी आपको जो है सुनाई पड़ सकता But है। in those times, this was a practice world over. और ये पूरे विश्व भर में इसको किया जाता था। All right. And God made provision that sin is so bad that the only thing that can remedy sin is the sacrifice of an innocent substitute. और उस समय में ये व्यवस्था थी कि अगर पाप की क्षमा, पाप को अगर ढाका जाना था तो एक निष्कलंक और बेकसूर की जो है बलि दी जानी थी। And the Israelites had to follow this practice and they realized how sinful they were. और इजरायली जो है इस प्रथा को लेकर चल रहे थे और इस बात को जान रहे थे कि कितने पापी है वो। And it's only when the blood was shed that God didn't let his wrath come upon them. और ये इसलिए होता था कि जब खून बहाया जाता था तब परमेश्वर का क्रोध उन पे नहीं आता था। And all those sacrifices were pointing to Jesus himself, that one day there's going to be one sacrifice, once and for all. The Son of God will become a man and give himself up, and his blood will be shed for the sins of the whole world, which includes you and me. और ये सारी बातें एक ही बात की ओर इशारा कर रही थी कि बहुत सालों बाद Amen. जो है प्रभु यीशु मसीह आएंगे, परमेश्वर इंसान का रूप लेकर आएंगे, उसका खून बहाया जाएगा एक बार हमेशा के लिए आपके और मेरे पाप की क्षमा के लिए। And this is what makes us different from everything else. और यही बात हम सबको जो है अलग करती है। We do not earn ourselves to God. हम अपने आप को परमेश्वर के वहां पर जो जगह है उसको कमाते नहीं। No efforts of ours. हमारा कोई इसमें मेहनत नहीं है। No righteousness of ours. हमारी कोई धार्मिकता नहीं है। No going to some holy land. और किसी भी तीर्थ स्थान पे जाना नहीं। Just what he did. ये इसके बदौलत है जो उसने किया। Amen. And the blood represents two things when we come to the altar. और जो खून है वो दो बातों को दर्शाता है जब हम वेदी की ओर आते हैं। We come through the blood of Jesus. हम आते हैं प्रभु यीशु के खून के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। And John 1:12 says this. और यूहन्ना 1:12 ये कहता है, To all who received him, और जिन्होंने भी उसको ग्रहण to किया, those who believed in his name, जिसने उसके नाम पर विश्वास he किया, gave the right to be called children of God. उसने उन्हें अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की संतान कहलाएं। Amen. We, by the blood, have got access to God's presence. और हमको प्रभु यीशु मसीह के खून द्वारा, उसके लहू द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए मिला। Sometimes we feel, God, I'm not good enough. I've done some bad stuff as a Christian, as a follower of Christ. और हम परमेश्वर से हो सकता है कह सकते हैं, प्रभु मैं तो है काबिल भी नहीं, मैं लायक नहीं हुआ कि मैं आपकी उपस्थिति में मैंने इतना ऐसा पाप किया है। Will God send you away? क्या परमेश्वर आपको वहां से निकाल देंगे? No.
Hebrews 10:19 says this. इब्रानियों 10:19 ये कहता है, We have boldness to enter the Holy of Holies by the blood of Jesus. हमारे पास वो धाड़स है कि हम उस Amen. पवित्र स्थान में जा सकें। God cannot separate himself from you. परमेश्वर अपने आप को हमसे अलग नहीं कर सकते। He shed his blood. उसने अपना खून बहाया है। All right. And when we come to the altar with the blood, his presence is with us now permanently. और जब हम उस खून के साथ उसकी वेदी की ओर आते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे But there's साथ one more रहती है। thing about the blood. एक और बात है खून के बारे में, It also talks about the overcoming power of God. और वो खून बताता है परमेश्वर के उस विजय के सामर्थ्य को। Revelation chapter 12 verse 11. I hope you're listening. रोमियो 12:11, मुझे उम्मीद है आप सुन रहे हैं। Revelation 12:11. प्रकाशित वाक्य 12:11, The blood at the altar. वेदी पर जो खून है, They overcame him by the blood of the Lamb. वे मेमने के लहू से जय पाए। We talked about being overcomers, but it's by the blood of the Lamb. और हम बुलाए गए हैं जीतने वाले लोग जो है विजय पाले लोग के, पर हमने इसे कैसे जीता है? उस मेमने के लहू से And by the word of their testimony. और उसके गवाहियों के शब्दों से। Amen. So how do we do this? इसको हम कैसे करें? All right. Daily, I want to ask everyone, please get your prayer time every day. और मैं आपसे कह रहा हूँ मेहरबानी करके आपका जो है प्रार्थना का समय निकाले। You have to have your prayer time. आपके पास आपका प्रार्थना का समय होना ही Or चाहिए। you will remain a defeated follower of Christ नहीं तो आप मसीह के हारे हुए चेले रहेंगे if you don't have your prayer time. अगर आपके पास आपका खुद का प्रार्थना And का in समय that नहीं। prayer time, you're saying, God, by the blood, I want the power of God. और आप अपनी प्रार्थना के समय में कहेंगे प्रभु आपके लहू के द्वारा मुझे वो परमेश्वर का सामर्थ चाहिए। Sometimes I hear people talking about, just apply the blood to the blood to your house and the blood to your healing for healing. I hear things like that. और मैं ऐसा लोगों से सुनता हूँ कि आप जो है खून को जो है अपनी चंगाई के लिए लगाओ, इधर के लिए इधर लगाओ, उधर लगाओ। But really the word is saying they overcame by the blood. और बाइबल ये कहता है कि मेमने के लहू से Amen. जय पाए। You want to talk about applying the blood? It's for overcoming sin. अगर आपको जो है लहू को लगाने के बारे में आपको बात करनी है तो वो है पाप के ऊपर। We broke bread today. हमने रोटी तोड़ी, What are we doing there? हमें क्यों करते हैं? Jesus gave us a covenant. यीशु ने हमें वो वाचा दी And है this is a symbol of the covenant, the bread and the cup. और ये चिन्ह है उसका, रोटी का और रस का। The cup signifies the blood of Jesus that was shed. Why are we doing it Sunday after Sunday? और जो प्याला है वो दिखाता है मसीह के खून का, उसके लहू का। हम उसको हर रविवार दर रविवार क्यों करते हैं? It is to remember that by the blood we have victory over sin and victory over sickness. और ये बताता है कि इसके खून से हमारे पास जो है पाप के ऊपर, बीमारी के ऊपर विजय है। Amen. So they overcame by the blood and the word of the testimony. और वो जो है जय पाई किससे? उस मेमने के लहू से और उसके वचन से। If you are struggling with something, अगर आप किसी चीज के साथ संघर्ष कर रहे हैं, maybe in a relationship, हो सकता है किसी भी संबंध रिश्ते में हो, in your prayer time, आपके प्रार्थना का समय हो, you overcome by the blood और आप जो है लहू से उस पे जय पाएंगे and the word. और उसके वचन से। That means you need to find a truth in the Bible that sets you free from your struggle. इसका मतलब ये है कि आपको उस सच्चाई को जानना है जो वचन में है, जो आपको आजाद करेगा। Amen. Amen. No one's really wanted to be. You don't want to be set free. You like being angry and upset. और आपको जो है बाहर निकलने नहीं, आपको अच्छा लगता है गुस्सा रहने का किसी You know, से जो so है many मिलना of है। us as Christians blame our walk with God because of somebody else. और हम में से बहुत से मसीह लोग हैं, हमारे मसीह के अंदर जो हमारा चाल चलन है अरे उसका जिम्मेदार हम किसी और को ठहराते हैं कि that इसकी fellow- वजह से मेरा चाल चलन परमेश्वर के साथ अच्छा Fellow नहीं didn't है। say hello to me today. अरे इसने मुझसे हेलो नहीं कहा आज। You know, I know why she said that, because this and this and this. मुझे पता है उसने ये बात क्यों बोली, क्योंकि ये हाँ ये। Am I talking something strange?
क्या मैं कुछ अलग अलग बोल रहा हूँ? I know what Tony meant anyway. He meant the right thing. All right. Listen, सुनो, when we think, because that person said it, I'm not free, और क्योंकि इसने मुझसे ऐसा बोला तो मैं आजाद नहीं हूँ, that's where you're living a lie. और यहीं पर आप जो है एक झूठ वाला जीवन जीते हैं। When I was 22 years old, 23 years old, और जब हमको बताते जब वो 22 साल के थे, I settled one matter. मैंने एक मामले को जो है रफा दफा If करा। I am not walking with God, अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा हूँ, I will never blame somebody else. मैं किसी और के ऊपर उस दोष को नहीं मढ़ूंगा, Even if they've done me wrong, अगर उन्होंने मेरे साथ गलत भी किया हो, because I can overcome. क्योंकि मैं जय पा सकता हूँ। That is the truth. ये सच्चाई है। You will get this sorted in your daily prayer. और इस बात को आप निपटेंगे अपने जो है रोजमर्रा की प्रार्थना जीवन में। Amen. If someone doesn't say hello to me, I don't try to think why. अगर कोई मेरे को हेलो नहीं बोल रहा है तो मैं दिमाग में अपने घुस के ये नहीं बोलूंगा कि क्यों नहीं बोला उसने मुझे हेलो। I just say, Lord, you love me. Feed yourself with God's love. और आप कहो कि परमेश्वर आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो वो मेरे लिए है। Amen. So daily prayer, use the part, find the truth that sets your thinking right. आपके रोज की प्रार्थना और दूसरा उस सच्चाई को ढूंढ लो जो आपको आजाद करे। All right. You will see a good habit formed over time. और आप देखेंगे जब आप ऐसा इन चीजों को करेंगे तो आपकी एक अच्छी आदत जो है वो बनती जाएगी। A habit of thinking that sets you free. एक ऐसा सोचने की आदत आपकी हो जाएगी जो आपको आजाद करेगी। Number 4. चौथी बात, I don't know if you've ever thought, why did Jesus call 12 guys? और मुझे पता नहीं आपने कभी सोचा होगा कि नहीं कि प्रभु ने जो है 12 चेलों को ही क्यों बुलाया? Says they called him to be with him before he sent them out. क्योंकि उसने बुलाया कि वो उसके साथ रहे इसके पहले कि वो उनको बाहर भेजे। Have you ever thought why he called? आपने सोचा कि क्यों इन 12 को उसने चुना, बुलाया? I'll tell you why. आपको बताता हूँ क्यों। Because knowing the truth, क्योंकि सच्चाई को जानना, to know the truth, सच्चाई को जानना, you find it in people's lives. आप इन बातों को लोगों के जीवन में जानते हैं। Okay? And people follow what they see in someone's life. और लोग इस बात को देखकर आपके पीछे चलते हैं कि आप कितने इस बात को जानते हैं। All right? That's why it's so important और इसलिए बहुत जरूरी है that we're not only reading the Bible alone. कि सिर्फ आप अकेले बाइबल ना पढ़ रहे हो, We learn to have a mentor or a discipler. और कि आपके पास ऐसा हो जिससे आप सीख रहे हो या आप किसी के साथ किसी के चेले हो, Who can say, come on, I'll show you how to do it. कि आप दूसरे को बोले कि Amen. मैं तुम्हें बताता हूँ इसको कैसे Now, this is करें। my invitation to you to go and find a mentor in church. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा आमंत्रण है तुमको कि जाओ और किसी सिखाने वाले के पीछे हो लो। Being an overcomer, number 5 in there, being overcomers, you live beyond just the commands of God. और आप जो है जय पाने वाले से लोग बने, और जय पाने वाले ऐसे लोग जो परमेश्वर के दिए हुए जो है नियमों के भी आगे रहते हो। All right, Jesus says, don't murder. यीशु ने कहा कि हत्या मत करो, But I say, don't get angry. पर मैं तुमसे कहता हूं कि गुस्सा मत करो, Because murder comes from there. क्योंकि जो खून है, हत्या है, वहीं से आती है। You see, when you live an overcomer, you live inside way beyond what the law is telling you outwardly not to do. और देखिए जब आप जो है व्यवस्था, जब आप जो है सत्य को जान लेते हैं तो व्यवस्था में जो लिखा है आप उसके एक स्तर ऊपर जीते हैं। And I want to say this, Hebrews 12:4. और इब्रानियों 12:4। Now listen everyone, very clear what the writer to Hebrews says. और गौर से सुनो कि इब्रानियों का लिखने वाला ये क्या कह रहा है। In your prayer time, are you struggling against sin? अगर आप अपने प्रार्थना के समय में जो है पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं, He writes this, he says, in your struggle against sin, कि अपने उस संघर्ष में पाप के साथ, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. कि अभी तक पाप के संघर्ष करने में आपने अपना खून भागों को भी बहाना नहीं पड़ा है। What is God saying to us?
परमेश्वर क्या कह रहा है हमसे? He's saying, be followers who resist sin to the point you're not going to get there where blood is shed, how Jesus shed his blood, but can you put some effort into it and struggle against sin? और यहाँ पर वचन कह रहा है, क्या तुम अपने आप को ऐसा संघर्ष में डालोगे कि तुम पाप के साथ जो है जूझ रहे हो, उसके संघर्ष कर रहे हो? आपको यहाँ पर खून बहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने पहले से आपके लिए खून बहा दिया है। आपको क्या, आप अपनी कुछ मेहनत, आप अपने अंदर से कुछ इस बात में डालेंगे? And the last one, और आखिर में, the fire consumes the sacrifice. परमेश्वर की आग नीचे उतर के उस बलि को जो है स्वीकार करती है। The climax, the main point at the altar is that fire has to consume the sacrifice. और यहाँ पर ये मुख्य बात है कि वो आग, परमेश्वर की वो अग्नि आसमान से नीचे उतर के उस बलि को जो है स्वीकार करती है। So when the first time the tabernacle was put out in the wilderness, और पहली बार जब तंबू को लगाया गया उस बंजर बियाबान में, in Leviticus 9:24, और लेवावस्था 9:24 says fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering. और अग्नि जो है स्वर्ग से उतरी और उसने उस बलिदान को जो है भस्म कर This दिया। was the very first time. और ये पहली बार था। Where did the fire come from? आग कहाँ से आई? From the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से। Solomon's temple. सुलेमान का मंदिर, This was a permanent temple. और ये जो है जो था एक मंदिर था। In 2 Chronicles 7:1 it says fire fell from heaven. और 2 इतिहास में ये कहता है कि आग जो है उस आसमान से उतरी। And this fire that fell from heaven, the priests were required to perpetually keep it on, never let it go out. और जब ये आग आसमान से उतरती थी तो याजक को, पुरोहित को इस आग को जलाए रखना था। Fire falls from God, it's not man-made. देखिए, आग जो है परमेश्वर की ओर से गिरती है, इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। It shows something. ये कुछ दिखाता है। God is now pleased with the sacrifice. ये दिखाता है कि उस बलि से, उस कुर्बानी से परमेश्वर खुश है। God's pleasure in the sacrifice. परमेश्वर प्रसन्न है, परमेश्वर खुश है। And I want to say this और यहाँ आपसे कहूंगा, for the New Testament. नए करार के लोग, The fire of God doesn't fall on talent. और परमेश्वर का जो आग है इसे हुनर पर नहीं गिरता, It falls on the living sacrifice. वो जीवित बलिदान पर गिरता है। It falls on offered lives or surrendered lives. वो जो जीवन चढ़ाया हुआ है, जो जीवन अर्पण किया हुआ है, उन पर गिरता Many है। of us want fire without the sacrifice. बहुत से लोगों को जो है वो आग चाहिए पर बिना बलिदान के। All right? And in the wilderness, और उस रेगिस्तान में Paul writes पौलुस लिखता है in 1 Corinthians 10:5, 1 कोरिन्थ 10:5, God gave miracles to them all for 40 years. परमेश्वर ने उनको 40 साल तक चमत्कार दिए, But God was not pleased with them. पर परमेश्वर You उनसे see, नाखुश था। What God is looking, He's saying, I'll give you miracles, I'll give you your outer court blessings, but will you give me a living sacrifice so that I am pleased with you? और प्रभु कहते हैं, तुम्हें वो आशीष चाहिए बाहरी कमरे वाली, वो तुम्हें मैं सब कुछ दे दूंगा, And पर when क्या we, तुम वो बलि, उस जीवित बलिदान को मुझे दोगे? and when we worship God like this, और जब हम परमेश्वर की आराधना उस तरीके से करते हैं, we become what Jesus says, the Father seeks worshipers. और वही हम बन जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता आत्मा और सच्चाई के आराधना करने वालों को ढूंढता And है। as you walk with God, you begin to get a sense of God's pleasure upon you. और जब आप इस बात को लेकर चलते हैं तो परमेश्वर के प्यार और उसकी उपस्थिति को महसूस आप करते हैं। Amen. आमीन। And finally, this is the place और आखिर में यही वो जगह है where God makes you influential. जब आपको परमेश्वर प्रभावशाली बनाते हैं। All right. God changed Abraham's name, which was exalted father,
When he gave the sacrifice of Isaac, God made him father of nations, Abraham. He changed the name. और जब इब्राहिम ने जब वो उसको बुलाया गया था तब उसको जो है ऊंचा उठाया हुआ पिता के तौर पे उसका नाम का मतलब था। और जब उसने अपने बेटे इसहाक की Amen. बलि चढ़ाने वो गया था तब उसका नाम अब्राहम हो गया था, राष्ट्रों का पिता। God's looking for a whole community of living sacrifices. परमेश्वर एक पूरे ऐसे समाज को देखना चाहता है जो अपने आप को एक जीवित बलिदान के तौर पे He's चढ़ाए। looking to give you authority वो देख रहा है कि आपको वो अधिकार सौंपे and a new name. एक नया नाम के साथ। Let's stand खड़े हो जाएं and let's just offer ourselves to God this morning. और आइए अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। Come just quietly between you and God. Take one thing or two things and just say, Lord, this I know has touched me this morning. You've spoken to me. Help me. और जोर से नहीं बल्कि ये बात आपके और परमेश्वर के बीच में होने दीजिए। परमेश्वर से कहिए कि प्रभु आपने मुझे जो है छुआ है इस वचन से, और प्रभु क्या वो एक दो चीज है मुझे आप बताइए। Come just take 30 seconds and ज्यादा नहीं, सिर्फ हम 30 सेकंड लेंगे। quietly talk to God. चुपचाप परमेश्वर से आप बात करें।